ओके सर, बहुत अच्छा है। Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Now we'll start with the first thing, that is what is machining. Machining क्या होती है? It's a very brief term. It is basically the removal of material from a workpiece. From any workpiece, when a material is removed, it is termed as machining. Now, basically, machining is classified into two types. The first is the traditional or conventional machining, and the second is the non-traditional and non-conventional machining. This is a brief chart describing the traditional and non-traditional machining. It consists of chip removal, aberration, and you see in the traditional process chip removal, the common process are turning, milling, turning which is done on lathe, milling machine, drilling, planing, shaping, etc. Similarly, aberration processes, polishing, buffing, lapping. So these are the traditional which we have already learned and we have seen in the workshop. सभी ने देखी होगी workshop में से. Next is the non-traditional or non-conventional machining. This is also classified into two types, aberration and erosion. Now, aberration processes, abrasive jet machining, ultrasonic machining, water jet machining, etc. And similarly, erosion processes are electrochemical machining, commonly known as ECM, EDM, electro discharge machining, laser beam machining, and so on. Now, what are the major differences between conventional machining and non-conventional or traditional versus non-traditional? Now, traditional machining involves tool wearing because the tool is in contact, physical contact with the workpiece. So there is a lot of wear on the tool. While in non-traditional machining, there is no tool contact, so there is no wear on the tool. Then conventional tool machining are less accurate, while non-conventional or non-traditional are more accurate. Tool life is less in non-traditional, in traditional, while in traditional tool life is long since there is no contact of tool with the workpiece. Similarly, tools are expensive in traditional machining. Also, they require a special, they do not require a special expert like lathe. Anyone can fix the tool on the tool post. And the spare parts in conventional or traditional machining are easily available. So these are some of the major differences between conventional and non-conventional machining. Now, as I've already told you that traditional or non-conventional machining processes are done basically on machines such as lathes, milling, drilling, boring, shaper, slaughter, planer. All of you have seen this in workshop. These are commonly available in the workshop, and we perform a lot of operations on these machines. This is a simple lathe machine, which all of you have seen in the workshop, and also commonly used in industry for performing many of the operations. The types of lathes. The first is the bench lathe. It is a very small lathe which is mounted separately and is used for very small precision works. बहुत छोटे जो इसमें precise accuracy चाहिए होती है वहां पर ये lathe use की जाती है, commonly known as the bench lathe. Then next is speed lathe. This is basically this provides a high speed and basically used for wood turning, not for metals, basically for wood turning, polishing, and metal spinning, etc. As you can see from the diagram, it does not have a power feed. There is no gearbox, no carriage, no lead screw. So it is basically used for wood turning operation, polishing, and metal spinning. Next is the engine lead. Now, why are these called as engine lathe? Because previously, when the lathe were designed, they were powered by steam engines. So that's why they are called as the engine lathes, and they are still in use. But now they use motor drive and electrical connections. Next is the tool room lathe.
This is nothing, this is just an engine lathe equipped with some extra attachment for accuracy and precision work, like taper turning attachment for lower rest, collets, different types of chucks can be accommodated, and the bed in this is very relatively small. Next is Castan and turret lathe. These are basically semi-automatic machines which are useful for mass production. Now, in this, the operator skill is not much required and it can perform a wide range of operations. They carry special mechanism for indexing the tool. They have different posts. Front tool post is there, then there is a rear tool post, and turret is basically used for holding drilling tools. This is the turret lathe. As you can see in the figure, it has tool post, two tool posts, and a large bed. So it can be used for a variety of operations, and basically drilling operations are performed on this turret lathe. This is a simple capstan lathe uh, on which again various variety of operations can be performed. This is a semi-automatic lathe machine. Now there are some special purpose lathe machines. What are special purpose lathe machines? They are basically designed to perform only specific special operations. Like an example is a facing lathe on which only facing can be done on the object. Then there is a vertical lathe in which the tool posts move vertically. And then there is another type known as the crankshaft lathe. This is an example of a facing lathe. As you can see in the picture, the size of the chuck. It is since it's a special purpose lathe and basically used for facing operation on the workpiece. So it carries a heavy chuck which is used to hold the object and so that the facing operation can be performed on it. This is a vertical lathe. This is again, as I have told you, it carries the tool is vertically fixed and the lathe bed is horizontal on which the workpiece is fixed and operation is performed vertically. Now the common lathe operation. The first is turning, straight turning, which we have learned in lot of topics in mechanical engineering workshops, etc. In this, basically the work rotates and the tool is fed parallel to it. As you can see in the picture, the work is fixed in the chuck and it rotates along with the chuck, and while the tool is fed from the tool post. The depth of the cut is perpendicular, thus producing a straight cylindrical workpiece. In this case, the diameter is affected, but length is not affected. Diameter is reduced, but length is not reduced. Next is shoulder or step turning. This is again an example of turning only. In this, what happens? The diameter is reduced up to a certain length. In turning, the diameter is reduced throughout the length of the workpiece, while in this, the diameter is reduced to a certain amount. Is my voice audible and clear everything? Yes, sir, clear. Okay. उनका network issue है. Okay, clear. Yes, sir. Next is facing. And now in this again, the tool is fed perpendicular to the lathe axis and the depth of the cut is parallel to the lathe axis. As you can see in the picture, the workpiece is rotating, is fixed in the chuck and the chuck is rotating along with the workpiece. The tool is fed and the tool is used to produce a flat surface on the workpiece. Here the length in shaft and thickness is affected while diameter is not affected. Means diameter is not reduced, but length can be is affected. Next is knurling. Now what is knurling? Knurling is a very common operation. Basically it is used for it is a process of embossing a diamond shaped pattern on the workpiece.
Why a diamond shaped pattern on the workpiece? So that it is used to hold the workpiece. Basically, any object is used to provide a grip. So to obtain a grip, we use knurling operation. And you can see in the picture, knurling tools are fitted. It consists of two rollers which rotate and they produce a diamond shaped pattern on the workpiece so that the workpiece can be easily held in the hand without any slippage. Next is after lathe, another very common type of machine is the shaper. Now, what is shaper? Shaper is basically consists of a machine tool which has reciprocates, and it is used to produce flat surface. These surfaces may be horizontal, vertical, or inclined. This is basically a shaper machine. You can see the tool is fixed vertically and the bed is horizontal on which the workpiece is held and the tool reciprocates vertically. This is again an example of a shaper in a simple workshop. Now this is types of shaper. How do we classify the shapers? Shapers are basically classified according to the type of mechanisms used to give reciprocating motion to the ram. Basically, in this, the ram reciprocates so that the tool moves up and down or to and fro to cut the object. So the first is the crank and slotted shaper or crank shaper commonly known as. It consists of slotted lever mechanism which changes rotary motion to the driving gear. Then the other is the geared shaper. This basically consists of rack and pinion mechanism to move the shaper. Now, it consists of reversible electric motor or any mechanical mechanism which provides quick return mechanism. Next is hydraulic shaper. A hydraulic shaper is a very another common type of shaper. It basically used a simple cylinder and piston which is filled with an hydraulic oil, and that hydraulic oil applies the pressure to move the tool post to and fro. Then again, the next classification is according to the position and travel of the ram. Now, in this again, there are basically classified into two types: horizontal shaper, in which reciprocates in horizontal axis, and the other is the vertical shaper, which reciprocates in the vertical axis. It has a round table that can rotate, and it can be also be tilted at some angle also, the vertical shaper. This is an example of a vertical shaper. You can see a round table for the workpiece on which the workpiece to be held, and the shaper tool can be also tilted at certain angle. This is another type known as the traveling head shaper. Now in this the ram moves crosswise for feed during reciprocation. ram जो है वो move करता है crosswise, but टेबल जो है वो मूव नहीं करती इसमें क्योंकि बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर वेरी हैवी जॉब्स. तो वो हैवी जॉब्स होती हैं वो टेबल पे फिक्स कर दी जाती हैं और रैम मूव करता है टू कट और टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस. नेक्स्ट इज दी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ द टेबल. किस तरह की टेबल की डिजाइन है उसके हिसाब से शेपर क्लासिफाई की जाती है. देयर इज द स्टैंडर्ड शेपर. इट हैज टू मूवमेंट. स्टैंडर्ड शेपर में एक्स एंड वाई मूवमेंट और एक होता है यूनिवर्सल शेपर. इसमें इन एडिशन टू द टू मूवमेंट जो टेबल है वो स्टिल्ट की जा सकती है अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द अपर पोर्शन ऑफ द टेबल कैन आल्सो बी टिल्टेड. मींस उसको टिल्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल में कट करना अगर चाह रहे हैं. यू कैन सी एन ए पिक्चर ऑफ दिस. दिस इज द यूनिवर्सल शेपर. आप इसमें देख सकते हैं टेबल को टिल्ट किया हुआ एक सर्टेन एंगल पे सो दैट द कट कैन बी मेड इन दिस. These are the few operations जो कट किए गए. देखिए आप हॉरिजॉन्टल शेपर वर्टिकल सरफेस से कैसे मटेरियल रिमूव हो रहा है. टी स्लॉट कट करना है. इंक्लाइन सरफेसेस अगर कट करने हैं तो आप इसमें देख सकते हैं. स्लॉटिंग कर सकते हैं इससे आप. टूथ कट करने हैं स्ट्रेट टूथ कटिंग स्पर गियर्स. तो ये सारी चीजें शेपर से करी जा सकती है.
नेक्स्ट अनदर कॉमन मशीन जो वर्कशॉप में पाई जाती है स्लॉटर। ये शेपर के बाद इन्वेंट हुई थी एंड इट इज इन दिस द टूल रेसिप्रोकेट्स इन अ वर्टिकल एक्सिस। टूल जो है वर्टिकल रेसिप्रोकेट करता है, शेपर में हॉरिजॉन्टल करता है मोस्टली। इसमें कोई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं होता है एंड स्लॉटर इज प्रोवाइडेड विद अ रोटरी टेबल। Slaughter is used for making regular and irregular surfaces, both internal and external. Now the types of slaughter. The most common type is the puncher slaughter. Basically, it consists of a heavy, rigid machine. बहुत heavy machine होती है ये, and it is used for removing this large amount of metal from forging and casting. जो कास्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या फोर्जिंग होते हैं उससे मेटल रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। तो दिस इज नोन एज द पंचर स्लॉटर। नेक्स्ट इज नोन एज द प्रिसिशन स्लॉटर। ये एक छोटी मशीन होती है, बहुत लाइट मशीन होती है, छोटी होती है और ये ऑपरेट होती है एट अ वेरी हाई स्पीड। दिस इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट फिनिश एंड फॉर लाइटर कट्स। बहुत जल्दी जल्दी कट करती है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो दिस इज नोन एज द प्रिसिशन स्लॉटर। नाउ नेक्स्ट द ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो स्लॉटर पे परफॉर्म किए जा सकते हैं? क्या क्या होते हैं? मशीनिंग स्लॉट्स होते हैं, इवेज कर सकते हैं, ग्रूव्स कट कर सकते हैं, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, ब्लाइंड होल्स आप कट कर सकते हैं इंटरनली, मशीनिंग ऑफ डाइस कर सकते हैं, पंचिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस को मशीन कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कैम्स को मशीनिंग कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल गेयर्स भी मशीन कर सकते हैं। तो स्लॉटर कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट स्लॉटर के बाद आता है प्लेनर। प्लेनर क्या चीज है? इट इज surface, as the name implies, planar. It is used to produce a plane surface on a workpiece। और एक प्लेन और फ्लैट सरफेस करते हैं इसको। और ये जो होता है बहुत बड़ी मशीन होती है, क्वाइट लार्ज कंपेयर टू अ शेपर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ प्लेनर। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल हाउसिंग प्लेनर और स्टैंडर्ड प्लेनर ये कहलाता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, देख सकते हैं, इट्स अ वेरी large machine with a very heavy bed. It consists of two vertical housing connected by cast iron member, and the table is mounted on the bed and it can reciprocate। ये टू एंड फ्रो टेबल जो है इसमें वो रेसिप्रोकेट कर सकती है और जो क्रॉस रेल है वो अप एंड डाउन मूव कर सकता है इसमें। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन साइड प्लेनर। ये एक साइड से ओपन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन साइड प्लेनर एंड क्रॉस रेल इज सस्पेंडेड एज कैंटिलीवर। जैसे आप देखते हैं कैंटिलीवर बीम, वैसे ही इसकी क्रॉस रेल जो होती है वो देखिए सस्पेंडेड है और ये काफी बड़ा है, साइज काफी बड़ा आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत वाइड वैरायटी या लार्ज जॉब जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है ये प्लेनर। नेक्स्ट इज डिवाइडेड टेबल प्लेनर, ऑल्सो नोन एज द टैंडम प्लेनर। ये क्या चीज होती है? इन दिस प्लेनर इट हैज टू टेबल्स ऑन द बेड व्हिच may be reciprocated separately together। जो टेबल्स होती हैं वो सेपरेटली रेसिप्रोकेट कर सकती हैं। दिस टाइप ऑफ डिजाइन क्या करता है? सेव करता है टाइम। आइडियल टाइम, आइडियल टाइम क्या होता है? जिसमें आप टूल चेंज करते हैं या आप ऑब्जेक्ट माउंट कर रहे हैं, उन सब में काफी टाइम वेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, चूंकि दो बेड एक साथ मूव करती हैं तो आप एक पे वर्क कर रहे हैं तो दूसरा को आइडियल रख सकते हैं, तो इससे काफी टाइम बचता है। नेक्स्ट इज दी पिट प्लेनर। ये एक बहुत बड़ा प्लेनर होता है, यूज फॉर मैसिव कंस्ट्रक्शन। बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हैवी कंस्ट्रक्शन पार्ट्स क्या होते हैं? शिप्स के पार्ट्स होते हैं या एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं जो काफी हैवी होते हैं। उनको प्लेनिंग के लिए, उसमें उन पार्ट्स को प्लेन करने के लिए ये प्लेनर यूज करते हैं। और इसमें टेबल जो है वो स्टेशनरी होती है और कॉलम जो है इसमें क्रॉस रेल लगे होते हैं एंड इट इज यूज फॉर वेरी लार्ज वर्क। आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, देखिए कैसा है। ये देखिए है पिट प्लेनर। ये काफी बड़ा होता है और इसमें आप देख रहे हैं कितना हेवी ड्यूटी इसमें क्रॉस रेल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये बहुत लार्ज वर्क पीसेस के लिए होता है जिसको प्लेन करना होता है। दिस इज नोन एज द पिट प्लेनर। नेक्स्ट आर दी ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन प्लेनर। क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं इसमें?
प्लेन कर सकते हैं, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या एंगुलर, कोई भी सरफेस को कर सकते हैं। स्लॉट्स भी बना सकते हैं और ग्रूव्स भी इसमें बना सकते हैं प्लेनर में। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग बहुत कॉमन ऑपरेशन है, आप लोगों ने देखा होगा वर्कशॉप में अक्सर ड्रिलिंग मशीन रखी होती है। एंड बेसिकली इट इज यूज फॉर जनरेटिंग होल्स के लिए, ड्रिल करने के लिए करते हैं, और साथ साथ फिनिशिंग ऑपरेशन में भी कई जगह इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत चीप और लो कॉस्ट प्रोसेस होती है। दिस इज एन सिंपल एग्जांपल ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। आप देख सकते हैं स्पेंडल और चक्की कैसे लगाई फिट की जा रही है ड्रिलिंग के लिए। दिस इज अ सिंपल ड्रिलिंग मशीन, बहुत कॉमनली ड्रिलिंग मशीन होती है, हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है, और ये अक्सर वर्कशॉप वगैरह में आप देख सकते हैं रखी होती है। इससे कई चीज़ें आप ड्रिल कर सकते हैं। बहुत इजली ऑपरेटेड मशीन होती है, डजेंट रिक्वायर वेरियस स्किल। नेक्स्ट है मिलिंग। मिलिंग मशीन क्या होती है? ये एक मशीन होती है जिसमें मल्टी पॉइंट कटर टूल होता है, और वो फेड किया जाता है अगेंस्ट दी वर्क फेड किया जाता है अगेंस्ट दी मल्टी पॉइंट कटर टूल। और कटर जो है वो रोटेट करता है बहुत ही हाई स्पीड पे टू रिमूव फ्रॉम दी वर्क पीस, मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ये देखिए मिलिंग कटर है। दो तरह की मिलिंग कटर और मिलिंग ऑपरेशन होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। दोनों के अपने रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल मशीन। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्या क्या एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो भी अभी डिस्कस करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के लिए इसमें होता है मटेरियल रिमूवल जो होता है वो चिप फॉर्मेशन में नहीं होता है, और कोई चिप फॉर्मेशन नहीं होती। एग्जाम्पल है एजीएम, ऑल्सो नोन एज एब्रेसिव जेट मशीन। इसमें माइक्रोस्कोपिक साइज के चिप्स रिमूव नहीं होते, इसमें मटेरियल रिमूव होता है बहुत स्मॉल साइज में, और ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन की वजह से इसमें मटेरियल रिमूव होता है। और इसमें नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या होता है, कोई भी टूल प्रेजेंट, तो टूल प्रेजेंट ना होने की वजह से एग्जाम्पल हो सकता है लेटेस्ट लेजर जेट मशीनिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में टूल तो होता है लेकिन उसमें बहुत कांटेक्ट नहीं होता वर्क पीस से, तो ये यूज होते हैं इस तरह के। सिमिलरली ईडीएम नोन एज इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो ये यूज किया जाता है हार्डन मशीन, हार्डन स्टील्स वगैरह के लिए। तो बहुत से एग्जांपल है, एब्रेसिव जेट मशीन मशीनिंग है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग है, आर एग्जांपल्स ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। तो क्या क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, क्यों हम करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग? ये बेसिकली इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनके कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें ट्रेडिशनल मशीनिंग से नहीं मिल पाते। जैसे ये एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज किए जाते हैं, जहां पे वर्कपीस फ्लेक्सिबल नहीं होता, या शेप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है वर्कपीस का, या इंट्रिकेट शेप है, या बहुत डीप होल्स है, या कोई कंपोजिट मटेरियल है जो कन्वेंशनल मशीनिंग से नहीं हो सकता, वो ट्रेडिशनल मशीनिंग से करते हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस। आप देख सकते हैं कौन कौन सी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में है। मैकेनिकल प्रोसेस के कुछ क्लासिफिकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल में है, इलेक्ट्रोथर्मल है, और केमिकल मशीनिंग प्रोसेस है। फर्स्ट इसमें है अल्ट्रासोनिक मशीन। ये बेसिकली ब्रिटल मटेरियल को रिमूव करने के लिए, किया जाता है। नाउ इसमें एब्रेसिव ग्रिड्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से ब्रिटल मटेरियल रिमूव होता है। टूल जो है वाइब्रेट करता है एट एन अल्ट्रासोनिक स्पीड, और मटेरियल उस प्रोसेस से रिमूव होता है। इसमें जो टूल होता है बहुत ही टफ, स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल मटेरियल का होता है, लाइक स्टील, स्टेनलेस स्टील, या कोई और डक्टाइल एलॉय। आप देख सकते हैं एक एब्रेसिव सेलरी जेट प्रोड्यूस कर रहा है, और कैसे वर्क पीस पे स्ट्राइक कर रहा है जहां पे मटेरियल रिमूव हो रहा है इस प्रोसेस से।
नेक्स्ट है एब्रेसिव वाटर जेट मशीन। ये क्या चीज है? इसमें बहुत हाई प्रेशर वाटर जेट यूज करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए, और एट द सेम टाइम एक एब्रेसिव पार्टिकल्स भी स्ट्राइक करता है वर्क पीस पे। इट कैन कट वेरी थिक पार्ट्स, 5 to 10 इंचेस कट कर सकते हैं। वाटर का क्या पर्पज होता है? वाटर एक तो प्रेशर तो जनरेट करता ही है, साथ में ये कूल भी करता है वर्क पीस को, तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं होती। तो these are some of the advantages of this abrasive water jet machine. Now these are some of the parts which can be made by using this abrasive water jet machine. You can see these slots or the holes or the grooving made on the workpieces using these abrasive water jet machine process. These are some of another uh, examples of abrasive water jet machining. आप देख सकते हैं इसमें कई तरह के इंट्रिकेट शेप्स हैं जो इस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, which are normally not possible by traditional machining processes. Now, the advantages of these abrasive water jet machining, क्या advantages? बहुत ही फास्ट सेटअप होता है इसमें, फिक्सचरिंग बहुत कम होती है इसमें, मशीनिंग वर्चुअली एनी 2D शेप कैन बी कट इन दिस थ्रू दिस प्रोसेस। इट हैज लो साइड प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई भी हीट जनरेट नहीं होती वर्क पार्ट पे क्योंकि वाटर भी साथ में होता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर मशीन रिलेटिवली थिक प्लेट्स। नेक्स्ट इज केमिकल मशीनिंग। केमिकल मशीनिंग क्या होती है? ये बेसिकली यूज की जाती है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, इंग्रेविंग के लिए या सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए केमिकल मशीनिंग करते हैं। और इसमें करते क्या है, जो पार्ट होता है या जो वर्कपीस होता है उसको केमिकल बाथ में इमर्स कर देते हैं, और एक कंट्रोल टेम्परेचर पे मटेरियल रिमूवल इसमें होता है। ये देख लीजिए प्रोसेस किस तरह से मटेरियल रिमूव हो रहा है। जो वर्कपीस है वो केमिकल में सस्पेंडेड है, और एक इलेक्ट्रोड ऊपर है जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से मटेरियल रिमूव हो रहा है। बी पार्ट में देखिए धीरे धीरे करके मटेरियल रिमूव हो रहा है फ्रॉम द वर्कपीस। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इसमें डाई जो है इस प्रोग्रेसिवली लोवर्ड इनटू द वर्कपीस, और इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से होता है, आयंस मूव करते हैं, और एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की वजह से मटेरियल रिमूव होता रहता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग भी करी जा सकती है। इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील होती है वो कैथोड होती है, और मेटल जो उस पर बॉन्डेड होता है विद डायमंड या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू एब्रेसिव पार्टिकल्स उस पर होते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होता है वो 95% होता है, और व्हील में वेयर बहुत कम होता है। ये नॉर्मल ग्राइंडिंग से बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज ईडीएम, और कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन। इसमें क्या होता है, जो स्पार्क एक जनरेट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। देखिए आप, येलो कलर का जो है वो इलेक्ट्रोड है, और जो पर्पल कलर में है वो वर्कपीस है। तो उस स्पार्क की वजह से हीट टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8000 to 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से वो वर्कपीस मेल्ट हो जाता है और मटेरियल रिमूव होता है। ये देखिए लाइन डायग्राम उसका देखिए आप। द वर्कपीस इज इमर्स्ड इन अ डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड, और जो टूल है वो स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है इन द डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड, एंड द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस। Now, EDM process में इलेक्ट्रिक स्पार्क जो प्रोड्यूस होता है, इट इज यूज्ड टू कट द वर्कपीस which takes the shape opposite to the cutting tool. दोनों चीजें जैसा कि हमने बताया, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड इमर्स होते हैं वाटर में, सॉरी डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड में होते हैं, विच इज बेसिकली अ लाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल। और एक सर्वो मैकेनिज्म मेंटेन जो है, स्पेस मेंटेन करता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस की कांटेक्ट में होना। Then there is another process known as the wire cut EDM.
इट इज अ डिस्चार्ज मशीन। ये सीएनसी मूवमेंट यूज करता है टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड कॉन्टूर या शेप। तो एक पर्टिकुलर शेप बनाना होता है तो उससे सीएनसी से इसको यूज करते हैं बनाने के लिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईडीएम प्रोसेस? इससे कोई भी मटेरियल कट कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर सकता है उसको कट कर सकते हैं। हार्डेंड वर्कपीस कैन बी मशीन। इसमें एक्स वाई जेड मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में कट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स डाइसेक्शन कट कर सकते हैं, मोल्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं और कम दाम पे कर सकते हैं। और ईडीएम में बर फॉर्मेशन नहीं होता। देन नेक्स्ट इज लेजर बीम मशीन। लेजर बीम मशीनिंग सभी ने पढ़ी होगी, बहुत कॉमन। लेजर बीम बेसिकली सबने पढ़ा होगा। लेजर बीम होती क्या है? सिंपल टर्म में लेजर को अगर डिफाइन करें तो इट इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इम्यूलेशन ऑफ रेडिएशन। इसमें बेसिकली स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, उससे रेडिएशन निकलता है और वो रेडिएशन कटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली अ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग and laser is directed on the machining workpiece. It uses thermal energy to remove material from the metallic or non-metallic surface. इसमें कोई भी वर्कपीस आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, दोनों से ये वर्कपीस मटेरियल रिमूव कर सकता है। And the laser is focused on the surface of the workpiece. The thermal energy of the laser is transferred to the surface। जो लेजर बीम जब स्ट्राइक करती है वर्कपीस पे तो जो उससे हीट जनरेट होती है उसकी वजह से वहां पे वर्कपीस मेल्ट करता है और वेपोराइज कर जाता है। ये लेजर बीम मशीनिंग जो होती है बेस्ट सूटेड होती है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, जहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। एंड इट कैन बी यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मटेरियल। ये डक्टाइल के लिए नहीं, ब्रिटल मटेरियल के लिए कॉमनली यूज्ड होती है। This is an example of a simple line diagram of a laser beam मशीन। आपने देखा होगा ये सिंपल लाइन डायग्राम। इसमें से लेजर बीम प्रोड्यूस हो रही है और वर्कपीस पे स्ट्राइक कर रही है। और इसकी खास बात है लेजर बीम मशीनिंग की कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और सरफेस फिनिश वगैरह बहुत अच्छी होती है जो पार्ट्स मशीन किए जाते हैं यूजिंग लेजर बीम। नाउ दिस इज a simple line diagram to show how laser beam strikes the workpiece। और जैसे वो स्ट्राइक करती है आप देखिए वर्कपीस मेल्ट हो जाता है, मोल्टन मेटल देखिए फॉर्म है नीचे रेड कलर में, और उससे वेपर्स निकलते हैं जो बाद में कूल करके वी कैन गेट द डिजायर्ड शेप फ्रॉम द वर्कपीस। दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द वर्कपीस। क्या है एडवांटेजेस इसकी? टूल वियर एंड ब्रेकेज आर नॉट इन्वॉल्व। इसमें टूल वियर या ब्रेकेज बहुत ज्यादा नहीं होता है। होल्स कैन बी लोकेटेड एक्यूरेटली। कहीं पर भी किसी भी कितने ही स्मॉल होल क्यों ना हो, लेजर बीम वहां पे पहुंच सकती है और इट कैन ड्रिल और रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द होल। और वेरी टाइनी होल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। मशीनिंग बहुत रैपिड होती है, बहुत फास्ट मशीनिंग होती है, टाइम नहीं लगता। एंड इट कैन ड्रिल होल्स एट डिफरेंट एंगल्स, डिफिकल्ट एंगल्स, जहाँ पे वहां पे होल्स ड्रिल कर सकता है कि जहाँ पे आप नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस या ड्रिलिंग टूल वगैरह नहीं पहुंच सकते। लेजर बीम वहां पे पहुंच के ड्रिल कर सकती है। एंड द ऑपरेशन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लो। क्या इसके डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये जो इक्विपमेंट है लेजर बीम का वो बहुत कॉस्टली होता है। वेरी हाई कॉस्ट is associated with the laser beam tool. Tapers are normally encountered in direct drilling of the holes। जब डायरेक्ट होल्स ड्रिल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है लेजर बीम थोड़ा सा डेविएट भी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेपरिंग वगैरह फॉर्म हो सकती है। अब ब्लाइंड होल ऑफ प्रिसाइज डेप्थ इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। जो होल दिख नहीं रहा है वहां पे लेजर बीम से कट करना काफी डिफिकल्ट होता है। और जो थिकनेस होती है मटेरियल की ड्रिलिंग इज वो रिस्ट्रिक्ट होती है सिर्फ 50 mm। 50 mm होल तक का ही ड्रिलिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इससे ऊपर की ड्रिलिंग नहीं हो सकती क्योंकि लेजर बीम जो होती है बहुत
fine beam होती है, and which is used to remove the material from the workpiece. So I would like to thank you. I hope you all have must enjoyed or learned something from this short and brief topic on traditional and non-traditional machining. Any question and queries regarding anything, you all are welcome. Over to you, sir, Arvind sir. Arvind sir. I'm audible. Arvind Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ सर, जी जी हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, फैकल्टी के लिए, सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर इसके लिए आभारी रहेंगे हम लोग। और हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, क्रिएटिव सेशन था। और हम अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, कोई क्वेरी हो तो आप लोग सर से पूछिए, फिर हम लोग सर को जाने दें, और भी सर के पास काम है, बिजी है। कोई क्वेरी है किसी के पास? एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन आप वेलकम। कुछ पूछना चाहते हो? सबने कुछ पूछना चाहते हो? गरिमा मैम कुछ पूछना चाहती हैं? नो सर, टॉपिक इज क्वाइट क्लियर फॉर मी। मैं खुद से बीटेक में सर की बुक्स पढ़ के मतलब हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, तो देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबनी कोई क्वेश्चन? सबनी कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आने के लिए। सर थैंक यू Thank वेरी you. मच। आप जा सकते हैं सर, आप एग्जिट कर सकते हैं, हम लोग फिर अपने आप एग्जिट हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सर, सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. आप लोग अब एग्जिट कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। Thank you, sir.